ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಂತ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಘೋಷಣೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಪುತ್ರರು, ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಾದಂಥ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಕಿ. ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅವರು ಕೋರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ದೇಶ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, ಹಿಂದಿನ ಸೈನಿಕರು 1 ಜನಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ, ಈ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಎರಡನೇದು, ಸೈನಿಕರ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬರದ ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 27 ಜನ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಲಿತರ ಜೊತೆಗೆ 10 ಜನ ದಲಿತರನ್ನು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದುಳಿದವರು ದಲಿತರು 37 ಜನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಕೂಡ ದಲಿತರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದು 37 ಜನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ ತನಕ ಕೂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಸ್ನೇಹದ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ
ಹಸ್ತೆ ಲಿಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಲಡ್ಕೆ ಲೆಂಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇವತ್ತು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನನು ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಾವು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ, ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ತೆಗಿತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಹಸುವನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕೋ, ಹಸುವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕೋ? ಹಸು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದನ್ನ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ವಿಭಜನೆಕಾರರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾನು ಅಂತ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಈಶ್ವರಪ್ಪರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. भारत माता की, भारत माता की। यहां हिंदी चल जाएगा, कन्नड़ की जरूरत नहीं है। वाह ಭತ್ತದ ಕಣಜ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. जगज्योति बसवेश्वर और कलियुग कल्पतरु राघव स्वामी को मेरा प्रणाम। साथियों, आगे आने की कोशिश मत कीजिए, प्लीज वहीं रहिए। देखिए, बारिश के कारण आप लोगों को बहुत दिक्कत हुई, कहां खड़ा रहना वो भी मुश्किल है। उसके बावजूद भी ये जो प्यार आपका देख रहा हूं मैं, जो आशीर्वाद आप दे रहे हैं, भाइयों बहनों, मैं रायचूर की मेरी इस यात्रा को कभी भूल नहीं सकता। आपके इस प्यार को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और आज तो आपने बड़ा रिकॉर्ड कर दिया है। जो लोग दिल्ली में बैठ करके षड्यंत्र कर रहे हैं, वो जरा आकर के नजर करें
कि प्रकृति की मुसीबतों के बावजूद भी ये रायचूर का प्यार देख ले, यहां का उत्साह देख ले, ये भाजपा के प्रति लोगों का समर्पण देख ले। इतना कष्ट उठा करके आप सबने इतनी मेहनत की, इतनी बारिश में की, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद मांगता हूं। भाइयों बहनों, 10 मई का दिन अब बहुत नजदीक आ गया है। आपका ये जोश बता रहा है कि कर्नाटका में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय है। बीजेपी एकमात्र दल है जिसके पास विकास का रोड मैप है, डबल इंजन की शक्ति है, डबल इंजन का संकल्प है। बीजेपी कर्नाटका को देश का, सुन लीजिए दोस्तों, बीजेपी का एक ही मकसद है, एक ही संकल्प है। बीजेपी और डबल इंजन की सरकार कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहती है। कर्नाटका नंबर 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर करके जवाब दीजिए। नंबर 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नंबर 1 बनाने के लिए बीजेपी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? हम वोट मांग रहे हैं कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए। और कांग्रेस किस लिए वोट मांग रही है? क्या कह रही है कांग्रेस? कांग्रेस ऐसा कह रही है कि हमारे एक नेता, उनका ये रिटायरमेंट होने वाला है, ये रिटायरमेंट का उनका आखिरी चुनाव है, बस अब जाते जाते एक वोट दे दीजिए। ये कांग्रेस के लोगों की मांग है। और जेडीएस वाले क्या कहते हैं? जेडीएस वाले ये कहते हैं कि कुछ भी करो, हमारे परिवार के राजनीतिक अस्तित्व को बचाइए। अपने परिवार के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और तभी कर्नाटका के जन जन की आवाज सुनाई दे रही है, हर मन का संकल्प सुनाई दे रहा है। किसान हो, गांव हो, गरीब हो, खेत हो, खलिहान हो, शहर हो या मोहल्ला हो, एक ही आवाज आ रही है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। सहोदर सहोदरियरे, मैं कर्नाटका बीजेपी को बधाई देता हूं कि कल उसने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में अन्न, अभय, अभिवृद्धि, आदाय, अक्षर और आरोग्य सभी विषयों पर फोकस किया गया है। कर्नाटका बीजेपी कर्नाटका के गौरव की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर
किसी भी तरह की आंच नहीं आने देगी। कर्नाटका की विरासत को तबाह नहीं होने देंगे। कांग्रेस और जेडीएस की तुष्टीकरण की राजनीति के आगे बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता चट्टान बन करके खड़ा रहा है। सहोदर सहोदरियरे, कल्याण कर्नाटका के विकास की जब भी बात आएगी तो येदियुरप्पा जी और बोम्बाई जी की सरकार के काम को याद किया जाएगा। कांग्रेस जेडीएस की सरकारों ने इस क्षेत्र को इतना समृद्ध होते हुए भी कटा हुआ रखा, इस क्षेत्र को विकास के अभाव में रखा। लेकिन बीजेपी सरकार ने, कल्याण कर्नाटका ने इस विकास की नई शुरुआत, यहां के लिए हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था की। कर्नाटका के संतुलित विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की भी योजना बहुत अहम है। इसमें से एक क्लस्टर यहां रायचूर में भी प्रस्तावित है। इससे यहां के नौजवानों के लिए, यहां के उद्योगों के लिए नई संभावनाएं बनेगी, यहां के विकास में और तेजी आएगी। सहोदर सहोदरियरे, कांग्रेस जेडीएस सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड असंतुलित विकास का है। कर्नाटका के एक बहुत बड़े हिस्से में बेहतर कनेक्टिविटी की मांग वर्षों से हो रही थी, लेकिन कांग्रेस ने कनेक्टिविटी को कभी प्राथमिकता ही नहीं दी। रायचूर वासी दशकों से रेल कनेक्टिविटी की डिमांड कर रहे थे। यहां रेलवे की मांग थी कि नहीं थी भाइयों? रेलवे की मांग थी कि नहीं थी? जरा पूरी ताकत से बताइए, रेलवे की मांग थी कि नहीं थी? रेलवे के लिए मांग करते थे कि नहीं करते थे? इस मांग को अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है। आज 2 बड़ी रेल लाइनों पर यहां तेजी से काम चल रहा है। हमारी सरकार कर्नाटका में हाईवे और एयरपोर्ट के नेटवर्क का भी विस्तार कर रही है। बढ़ती हुई ये कनेक्टिविटी कर्नाटका में औद्योगिक विकास को गति देगी। सहोदर सहोदरियरे, कांग्रेस जेडीएस की सरकारों ने सबसे बड़ा धोखा हमारे गांवों के साथ किया है, हमारे किसानों के साथ किया है। कर्नाटका के मेहनत करने वाले किसानों के साथ धोखा किया गया है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने जिस तरह की लूट मचाई, उसने गांव तक विकास का लाभ पहुंचने ही नहीं दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री की बात बताता हूं, मेरी बात नहीं बता रहा हूं, आप याद रखोगे।
याद रखोगे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है तो उसमें से 85 पैसे, 1 रुपये में से 85 पैसे बीच में ही कोई खा जाता है। सिर्फ 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता है। उस समय तो पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही राज था और उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा चोरी हो जाता है। ये कौन सा पंजा था जो 85 पैसे लूट लेता था? कांग्रेस ने खुद अपनी पहचान 85% कमीशन खाने वाली सरकार की बनाई है। इतना पैसा हड़प लेने के बाद गांव और गरीब का विकास असंभव है। यही कारण है कि 2014 तक देश की आधी से अधिक आबादी मूल सुविधाओं से वंचित थी। स्नेहितरे, कांग्रेस का ध्यान हमेशा अपने एक परिवार तरफ रहा, इसलिए उसने कभी एक ही परिवार की सेवा, सब कुछ एक परिवार के लिए, और इसलिए कभी सामान्य मानवी के परिवार पर, उनकी जरूरतों पर कांग्रेस ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का वो परिवार आगे बढ़ता चला गया और देश पीछे छूटता चला गया। जनता की जरूरतें उसके लिए संकट बनती चली गई। ये सिलसिला तब बंद हुआ जब बीजेपी की सरकार बनना शुरू हुई। हमने अपनी सारी ऊर्जा पुराने गड्ढों को भरने में और भविष्य को बनाने के लिए काम करने में लगाई। हमने बड़े निर्णय लिए, हर वर्ग की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनाई। नहीं तरे, देश के बड़े हिस्से में पानी का संकट गहराता चला जा रहा था। ये बीजेपी की सरकार है जिसने पहली बार अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाया। हमने पानी पहुंचाने से लेकर पानी बचाने तक के प्रयास शुरू किए। इस योजना के तहत देश के करीब 9 करोड़ परिवारों को पाइप से पीने का पानी मिल रहा है। हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए भी एक प्रभावी व्यवस्था चाहिए थी। ये बीजेपी सरकार है जिसने पहली बार एक अलग सहकारी मंत्रालय का गठन किया। देश के युवाओं के सामने रोजगार का संकट दशकों से बढ़ता चला जा रहा था। अवसर थे तो कई बार स्किल की कमी होती थी, पारंपरिक स्किल थी तो अवसर कम थे।
पहली बार बीजेपी सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के युवाओं को स्किल बनाने का अभियान शुरू किया। आज देश के करोड़ों स्किल्ड युवा देश ही नहीं दुनिया में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। सहोदर सहोदरियों, आजादी के बाद से हर सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों बहनों की उपेक्षा की, उन्हें विकास से वंचित रखा। ये भी अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी की ही सरकार थी जिसने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया था। हमारे पूर्वोत्तर को भी इन लोगों ने बाकी देश से काटकर अलगाववाद की आग में झोंक दिया था। हमने पूर्वोत्तर के विकास को प्राथमिकता देने के लिए भी अलग मंत्रालय बनाया। आज नॉर्थ ईस्ट विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। सहोदर सहोदरियों, बीजेपी ने गांव, गरीब और युवाओं, महिलाओं की समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान को भी प्राथमिकता दी। आज देश की करोड़ों महिलाएं लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए आत्मनिर्भर भारत को ताकत दे रही है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की व्यवस्था ने किसानों के लिए खेती के मायने बदल दिए हैं। ये काम इसलिए हुए क्योंकि आपने एक परिवार की चिंता करने वाली कांग्रेस को हटाकर सबका साथ, सबका विकास करने वाली बीजेपी को चुना। स्नेहितरे, कांग्रेस जेडीएस ने तुष्टीकरण की नीति के कारण असली जरूरतमंदों को पर कभी ध्यान नहीं दिया। यहां बंजारा, लंबानी समाज, कुर्बा समाज की समस्याएं भी बरसों से लंबित थी। बीजेपी सरकार ने पहली बार इनकी बस्तियों को गांव की पहचान दी। हजारों बंजारा परिवारों को हक्कू पत्र दिए। इससे समाज के हर वर्ग को विश्वास मिला है कि उनकी समस्याओं को भी बीजेपी ही हल करेगी। कांग्रेस का तुष्टीकरण आज बीजेपी के संतुष्टीकरण की नीति से हार चुका है, हार निश्चित हो चुकी है। सहोदर सहोदरियों, श्री कृष्णदेवराय जी ने सुशासन की जो परिपाटी बनाई उसको बीजेपी सरकार आगे बढ़ा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कर्नाटका के करीब 40 लाख गरीब मरीज मुफ्त इलाज ले चुके हैं। अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो इसी इलाज के लिए गरीबों को हजारों करोड़ रुपए खुद खर्च करने होते। लेकिन ये बीजेपी सरकार है जो गरीब के पैसे बचाने, गरीब की चिंता कम करने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने देश में 9,000 जन औषधि केंद्र खोले हैं। वहां भी ज्यादातर दवाइयां बहुत कम कीमत पर बिक रही है। इससे भी हमारे गरीब के, हमारे मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। हर काम में 85% कमीशन लेने वाली कांग्रेस गरीबों की ऐसी भलाई का कोई काम नहीं कर सकती। सहोदर सहोदरियों, ये क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है। अपने करप्शन काल में कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी के नाम पर भी खूब झूठ बोला। कांग्रेस का करप्शन काल ऐसा ही था। आज आप बीजेपी का अमृत काल देख रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से देश के करोड़ों किसानों को एक क्लिक पर पैसे भेजे जाते हैं। अभी तक देश के करोड़ों किसानों को
लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। इसमें से लगभग 500 करोड़ रुपए रायचूर के किसान परिवारों को भी पहुंचे हैं। सहोदर सहोदरियों, अच्छे बुरे साथी की पहचान संकट के समय होती है। याद कीजिए, जब भी देश पर संकट आया है तो कांग्रेस जेडीएस के नेताओं ने उस संकट पर भी राजनीति की है। आजकल सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, गोलियां चल रही है, बम फूट रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। हम वहां से एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने में रात दिन जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस पर भी राजनीति की और यहां अनेक परिवारों को भड़काने का प्रयास किया। यूक्रेन संकट हो, कोरोना का वैश्विक संकट हो, इन लोगों ने, कांग्रेस ने, जेडीएस ने निराशा फैलाना, झूठ फैलाना, अपनी राजनीति करना, यही काम इन्होंने किया। लेकिन बीजेपी की मजबूत सरकार इनके हर प्रयासों के बावजूद एक एक हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को संकटों के बीच में से सकुशल सही सलामत भारत लाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये बीजेपी की सरकार है जिसने संकट के समय पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर हर भारतीय को कोरोना के मुफ्त टीके लगाए, मुफ्त वैक्सीन लगाया। ये बीजेपी की सरकार है जो करीब 3 साल से 80 करोड़ से अधिक हमारे देश के नागरिकों को, हमारे भारतीयों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है।